بھی تو دیکھا بغداد کا پیر اس کے سر پر کھڑا ہے. حضرت علی بن ابی ڈر گئے. حضور غوث پاک ارشاد فرمانے لگے علی ڈرنے کی بات نہیں ہے، جس رسول کو تم خواب میں دیکھ رہے تھے بغداد کا پیر اسے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ. یہ زیارت ہے. یہ زیارت والے سمجھتے ہیں جن کو رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے، اس کا کتنا مزہ اور کتنا نشہ ہے. یہ تو حضرت ابو بکر سے پوچھو، یہ تو جناب عمر فاروق سے پوچھو زیارت رسول کیا چیز ہے. یہ حضرت صوبان سے پوچھو. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے سونے یہاں جب دل تک پڑتا ہے نا آپ کی یاد آتی ہے تو جلدی سے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، زیارت کرتا ہوں تو حضور دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. شیخ مادی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور کا ذکر سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں. حضور کا ذکر ہو تو بندے کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے. پھر وہ سمجھے کہ میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں، پھر وہ انسان کے لانے کی بلائی کرے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے علی جسے تو آپ دیکھ رہا تھا اس رسول کو میں اپنی سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں دیکھ رہا ہوں. حالت بیداری میں یہ زیارت کا جو نشہ ہے نا وہ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی سے پوچھو، یہ جناب مولا کائنات سے پوچھو. حضرت صوبان عرض کرنے لگے حضور یہاں دل تنگ پڑتا ہے تو حضور آپ کی زیارت کو آ جاتا ہوں، لیکن اب جب مجھے قیامت کا منظر یاد آتا ہے نا حضور جب جنت کا خیال آتا ہے، جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جانی ہے، جنت تو اہل سنت کو ملنی ہے انشاءاللہ. آپ اس لیے نہیں بولتے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اہل سنت کے پاس سے ساری نشانیاں ہیں. جنتی گروہ کی نشانیاں ساری اہل سنت کے پاس ہے، باقی کسی کے نصیب میں یہ نہیں ہے. اٹھے چومنا یہ جنتی گروہ کی نشانی، یہ جناب ابو بکر کی سنت یہ بھی اہل سنت کے پاس ہے. مزارات پر جانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. غزوہ احد کے مزارات پر حضور جاتے تھے یہ بھی اہل سنت کے پاس ہی ہے. اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا یہ صحابہ کی سنت یہ بھی اہل سنت کے پاس ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا یہ صحابہ کی سنت اور یہ بھی اہل سنت کے پاس ہے. سبحان اللہ. کسی اور کے حصے میں یہ نشانیاں نہیں ہیں. تو حضرت صوبان عرض کرنے لگے حضور جنت تو مل جانی ہے لیکن ایک کھٹکا ہے دل میں. سونیا جنت میں آپ ہوں گے اعلیٰ درجے پر، میں جنت میں تو ہوں گا لیکن پتہ نہیں کدھر مجھے جگہ ملے گی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پہلے کے جواب دیتے اللہ جل شانہ نے آیت مبارکہ نازل کر دی. سبحان اللہ. محبوب اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دیجئے جو اللہ رسول کے حکم پر چلے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. یہ حضرت صوبان کے لیے آیت نازل ہوئی. تو یہ زیارت کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ ایک شخص کو زیارت کرواتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دن نہ ہو کسی ظالم کی مسجد پر جا کر بیٹھ گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زیارت روکی. باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے آپ، ایسی باتیں ہم سمجھ ضرور لیتے ہیں لیکن عمل ہم نہیں کرتے. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں. صبح کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو ذرا مولوی ہے میں لگے رہیں گے جب مار جا سو قبر بھی جا سو پھر پتہ لگ سی مولوی کیڑی گلا کرنے سے ٹھیک سی یا نہیں سی. ہم نے صرف یہ پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ جناب ہمیں پتہ ہے کیا ہے، ہم ایک بندے کی غلطی ہو نا دین میں ایک بندہ غلط ہو تو سارا دین چھوڑ کر کہتے ہیں جناب نہیں مولوی ٹھیک نہیں ہے. کپڑا تمہیں ایک اپنی مرضی کا لینا ہو تو 100 دکانیں گھوم کے لے لیتے ہو. دین اتنا سستا ہے کہ جناب ایک سے متنفر ہو کے سب کو تم نے چھوڑ دیا. نہیں جی سارے ایسے ہوتے ہیں، نانا سارے ایسے نہیں ہوتے. کوئی اعلیٰ حضرت جیسے بھی ہوتے ہیں، کوئی پیر میر علی شاہ صاحب جیسے بھی ہوتے ہیں، کوئی خواجہ ہند الولی جیسے بھی ہوتے ہیں جو نبی لاکھ کو کرنا پڑھا دیتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ نہیں دکھایا، رو پڑا. عرض کرنے لگا حضور کوئی غلطی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادھر سے میری زیارت کرتے ہو، ادھر سے ظالموں کی مسند پر جا کر بیٹھتے ہو. نہ آپ زیارت نہیں ہو سکتی. ادھر سے میری زیارت اور ادھر ظالموں سے ہاتھ ملاؤ. ادھر سے میری زیارت ادھر ظالموں کو ووٹ دو تو پھر رسول اللہ کی زیارت نہ سمجھو کہ تمہیں ہوگی. اگر رسول اللہ روزانہ زیارت کرنے والے کی زیارت روک لیتے ہیں نا اس وجہ سے کہ وہ ظالم کی مسند پر
सारी जिंदगी जालिमों के साथ चलता रहा, जो दीन के दुश्मनों के साथ चलता रहा, जो खत्म नबूवत के गद्दारों के साथ चलता रहा, जो रसूलुल्लाह के गद्दार काम डाल के, ये नहीं है कि 20 रुपए का 20 किलो का थैला दे के 25 अखबारों में जनाब इश्तिहार लगे ना। हज़रत सैयदना फारूक आज़म दूसरे खलीफा मुसलमानों के चेहरे पर निकाब डालते थे, कहीं नेकी जाया ना हो जाए, कहीं कोई देख ना ले कि अमीरुल मोमिनीन ये काम कर रहे हैं। नेकी जाया करने के डर से अपने चेहरे के ऊपर निकाब डालते थे, लोगों की खिदमत करते थे। एक दफा आप अपने गुलाम के साथ मदीने की गलियों में गश्त करते हुए, सुबह की अजान होगी, सुबह हज़रत सैयदना फारूक आज़म आए, फजर की नमाज पढ़ाई, अपने गुलाम से कहने लगे मदीने की एक गली रह गई है, हो सकता है कोई हाजतमंद वहां बैठा हो, तो जब हम उस गली में न गए तो हो सकता है क़यामत के दिन हमारी शिकायत हो जाए। हाँ, ये डर है, ये डर है। कहने को मैं और आप भी हज़रत सैयदना फारूक आज़म के मानने वाले हैं, लेकिन हमारे सीने के अंदर ये डर नहीं है। हज़रत उमर इब्न जलाल वाले थे, जिस गली से गुजर जाते थे शैतान भी रास्ता बदल लेता। सुभान अल्लाह। हाँ, जिसको रात को बहुत ज्यादा शैतानी ख्यालात आते हो ना, उलमा ने लिखा अपने सीने पर जनाब उमर का नाम लिख के सुना करे, शैतानी ख्यालात आते। हाँ, उमर का नाम इतना पावरफुल है, हाँ, दीन इतनी पावर रखता है। उमर का नाम अगर इतनी पावर रखता है तो किस वजह से? रसूलुल्लाह का गुलाम होने की वजह से, रसूलुल्लाह का गुलाम होने की वजह से उमर के नाम में इतनी पावर है कि सीने पर सो के लिख जाओ, शैतान तुम्हारे ख्वाब में नहीं है। इतनी बड़ी बात है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म अपने गुलाम के साथ उस गली में पहुंचे तो नुक्कर पर देखा एक खैमा लगा। आप जल्दी से आगे गए, दरवाजे में से जाके खैमे के उस पर्दे में से जाके देखा बूढ़ी अम्मा बैठी, परेशान है, परेशान हाल है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म आगे बढ़े, क्योंकि चेहरे पर निकाब था। आप अर्ज करते अम्मा जी अंदर आ जाओ। अम्मा जी कहने लगी आ जाओ। हज़रत सैयदना फारूक आज़म ना करीब जाकर कहने लगे अम्मा जी बड़ी परेशान लगती है, क्यों रो रही हो? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी मैं उमर को रो रही हूँ। हज़रत असलम कहते हैं जनाब उमर इस दर्द से रोए कि मैं ये समझा कि आज उमर जिंदा नहीं रहेगी, आज उमर की रूह परवाज़ कर जाएगी। जनाब उमर इस दर्द से रोए। फिर हज़रत सैयदना फारूक आज़म कहने लगे अम्मा जी क्या हुआ? 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया, 25 दिनार मेरे ऊपर कर्ज है, 3 दिन हो गए उमर ने मेरा पता भी नहीं किया। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रो पड़े। हज़रत असलम कहते हैं इस तरह उमर रोए जैसे छोटा बच्चा होता है। हज़रत उमर उठे जल्दी से, जाके बैतुल माल से आपने सामान खाने पीने का लिया, खाना तैयार किया, वापस आए, बूढ़ी अम्मा के कदमों में बैठ के ना निवाले तोड़ के खुद अपने हाथों से बूढ़ी अम्मा के मुंह में डालने लगे। सुभान अल्लाह। ये खिदमत है, ये रियासत मदीना है जनाब। दावे में बूढ़ी अम्मा को खाना खिला रहे थे, 25 दिनार भी पेश किए। तो जनाब सैयदना फारूक आज़म कहने लगे अम्मा जी उमर को माफ कर दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहने लगी उमर को नहीं माफ कर सकती, तू जवान है, अच्छा तू इस काबिल है कि तू हुकूमत करे, तू इस काबिल है कि तू मुसलमानों का खलीफा हो। उमर को किसने खलीफा बना दिया? उसने 3 दिन हो गए मेरा पता नहीं किया। जनाब उमर रो रहे हैं और साथ कहते हैं अम्मा जी उमर को माफ कर दो। सुभान अल्लाह। जब बार बार इसरार किया तो अम्मा जी कहने लगी अच्छा जवान तू अच्छा बंदा है, तेरे कहने पर उमर को मैं माफ कर दूं, तेरे कहने पर उमर को माफ करूं। हज़रत सैयदना फारूक आज़म ने कागज और कलम निकाला, कहा अम्मा जी यहाँ लिख दो कि आपने उमर बिन खत्ताब को माफ कर दिया है। कहा बेटा तुम लिखो मैं दस्तखत कर दूंगी। हज़रत सैयदना फारूक आज़म ये बातें चल रही थी, जनाब मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा लोगों ने दूरियां डाली, लेकिन देखो कितना प्यार है। रो पड़े, कहने लगे अम्मा जी वादा था कि आप लिख के देंगे। कहा बेटा लिखो मैं दस्तखत कर दूंगी। जनाब उमर पाक ने लिखा कि फलां बूढ़ी अम्मा फलां कबीले की उमर से नाराज थी, उमर ने उसको राजी कर लिया, उसने दिल से उमर को माफ कर दिया। बूढ़ी अम्मा ने दस्तखत किए, जनाब मौला कायनात पास खड़े थे। हज़रत सैयदना फारूक आज़म ने वो कागज और कलम बढ़ाया, कहा अली गवाह के दस्तखत तुम भी कर दो, अली गवाह के दस्तखत तुम भी कर दो। जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद गवाह के दस्तखत आप भी कर दे। अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं?
जनाब मौला कायनात से आप इरशाद फरमाने लगे, अली जब मैं मार जाऊं तो ये मेरे कफन में रख दें। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके पास कोई निशानियां रखने के लिए? मौला कायनात अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन इसको क्या करना है? कहा अली जब मैं मार जाऊं तो मेरे कफन में रखना। कहा क्या होगा? कहा अगर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया ना कि ए उमर, मैं तुम्हें मुसलमानों का खलीफा बना के आया था जनाब अबू बकर के बाद, बता तूने कैसे हुकूमत की? तो ये कागज पेश करूंगा, अर्ज करूंगा हुजूर आपकी उम्मत की एक बूढ़ी अम्मा नाराज थी, उमर उसे भी राजी करके आया था। हाँ, उमर उसे भी राजी करके आया था। ये उनके ये थी फिक्र आखिरत में। और आप मेरे और करामत और मौजज़ा जो है, मौजज़ा नबी से सादर होता है और मौजज़े की तारीफ यह है जो अकल से मावरा अकल में ना आ सके। अकल में आ जाए तो मौजज़ा नहीं रहता है। जैसा कि चांद के दो टुकड़े हो जाना। अब चांद कितना दूर है, उंगली उठी, अब उंगली तो नहीं गई ना काटने के लिए, ना चांद आया उंगली के पास। मौजज़ा ये है कि मक्के की सरजमीन पर हुजूर ने उंगली उठाई और चांद दो टुकड़े हो गए। हबीब बिन मालिक की बेटी शिफायाब हो गई। तो मिर्जे के तो बाल उठा के देखे, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए, मलका बिलकीस आ रही और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, कौन है जो तख्त ले आए? उसका कौन है जो तख्त ले आए? उसका तख्त मुफस्सिरीन ने लिखा कि 40 गज लंबा 80 गज चौड़ा था, इतना लंबा, और हीरे जवाहरात 7 कोठरियों के अंदर बंद था। बड़ा जिन उठा, कुरान कहता है बड़ा जिन उठा, इफरीत मिनल जिन, बड़ा जिन उठा। उसने कहा हजरत मुझे इजाजत है, मैं ले आता हूं। कहा कितनी देर में लाओगे? आपके उठने से पहले, मजलिस खत्म होने से पहले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं, मुझे इससे पहले चाहिए। हजरत आसिम बिन बरकिया उठे, जिनके पास किताबुल्लाह का इल्म था, वो भी किताब जो उस वक्त के नबी पर नाजिल हुई थी। वो कहने लगे हुजूर मुझे इजाजत है, मैं लेके आता हूं। कहा कैसे लाओगे? कितनी देर में? कहा सोने आंख बंद करोगे, खोलोगे तो तख्त तुम्हारे सामने। हाँ, आंख, ये तो कुरान है ना, जिसको कुरान समझना है उसको मिर्जा किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, पूछे कोई।
صدقائے آل رسول وہی سلام آج رانا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الدار والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مسموع منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سكر العلا نور الهدى جنب المرام اسمه الظلم جميل الشيم جميع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مكتوبه والمكتوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العربين سراج السائقين الأسباب المقربين مهب الفقراء والغرباء واليتامى والمساقين سيد الثغرين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين
عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तो रब करीम का इतना करम है, जिनको उसने तौफीक बख्शी थी वो दरिया से भी आगे, ज़मीना से भी आगे और सागरी से आगे के आगे, और जो यहाँ पर हमारे ग्राउंडों को बात करने वाले नौजवान हैं उनको नसीब नहीं हुआ। ये शायद वो घड़ियाँ हैं जो सरकार की बारगाह में कबूल होंगी, क्योंकि इखलास और मोहब्बत प्यार इन महफिलों में मिलता है, और अपना अकीदा समझने के लिए नेक लोगों के पास बैठना पड़ता है। आज तूफान हैं बादअकीदगी के, इसीलिए आप हमारे बहुत सारे अजीज जुमा को बार वक्त आते हैं और वो पूरी बात सुनते हैं। इसी दफा की जिस दफा की बात है कि मुझसे एक दोस्त पूछने लगे, अल्लामा साहब ने जो खिताब किया था, मैंने कहा अफसोस कि आपने शुरू से इस किताब को सुना नहीं था। अगर आप पूरा किताब सुनते तो आप इस सवाल मुझ पर ना करते जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं। मैं आपको क्या समझाऊं? उन्होंने पूरा को समझाया है, लेकिन आपने आखिरी बात सुनी और वो ज़हन में रख ली। इसलिए कोशिश किया करें जुमे को भी हमारा यही समझे कि दर्स कुरान होता है। सुभान अल्लाह। उस वक्त भी हमारा दर्स कुरान नहीं चल रहा है। जो भी हमारे लम्हात हैं हम कोशिश कर रहे हैं दर्स कुरान। हमें ये नहीं है कि यहाँ अज़ान का मजमा हो, यहाँ 1000 लोग आए और हमारे नारे लगाए, नहीं, हम तो रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं इंशाअल्लाह। तारे खत्म नबूवत के नारे के साथ जिंदा है और इंशाअल्लाह इसी के साथ मौत आएगी, इसी के साथ मौत आएगी। और लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं के साथ जिंदा हैं और लब्बैक के नारों के साथ ही इंशाअल्लाह कब्र में हम जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा ईमान है कि ये बात जिस तरह बाबा जी ने बताया है उसके मुताबिक चल रहे हैं। इसलिए आप दीन को सीखने के लिए, अकीदे को समझने के लिए बर वक्त तशरीफ लाया करें और खुसूसन दर्स कुरान पाक में ज़रूर बरदूर तशरीफ लाया करें। इंशाअल्लाह ये दर्स कुरान क़यामत तक जारी रहेगा। और जितने लोग दूर नज़दीक तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इन सब पर अपना खुसूसी करम फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मौजूद वल करम मम्बालिल में वल खिलम व हिकम व बारिक सल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। परवरदिगार आलम, इस प्यारी शरीफ की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। शुरू से लेकर इस वक्त तक जो जिक्र और ज़िक्र होते रहे, सबको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। कोई कमी पेशी है तो माफ़ी अता फरमा। पूरी कलाम का सवाब हदियतन तोहफतन उज़ामतन नबी रहमत की बात है दस में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन 1,24,000 पैगंबर, 4 गियास, फतन पाक, शहीदा ने करबला, तबा ताबीन की रूह को पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। बिलखुसूस महबूब सुब्हानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज़ लामकानी, कदीर नूरानी, अशहद महियुद्दीन, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, पीरन पीर दस्तगीर
ग्यारहवीं वाली सरकार की बात आप पेश करते हैं। सरकार मुस्तफा का सत्ता कादरिया खानदान, चिश्तिया खानदान, अहमदिया खानदान, सोबतिया खानदान, मेरे अला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक वली गौस कुतुब अब्दाल पीर फकीर दरवेश सब फिर उनको पेश करते हैं फूलों में। रुसूल गाज़ी मिल्लत इस्लामिया मलिक मुमताज हुसैन काजी शहीद कारवाने खत्म नबूवत के शहदा अमीरुल मुजाहिदीन खातमुल रिज़ा मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और मशहूर मारूफ नाथ खान खालिद हसनैन खालिद की रूह को पेश करते हैं और अली साहब की कच्ची जान की रूह को पेश करते हैं। फिर उनके तफैल मेरे मौला खसूसन हाज़रीन के लवायकी जिन जिन कब्रिस्तान में आराम फरमाने मेरे मौला इस ग्यारहवीं शरीफ के फैल सबकी बख्शिश पा सब पर खुशी करम मेरे मौला सबको जन्नत में आला रफ़ा मकाम पा और इन दिनों में जितने लोग इस दुनिया से जा रहे हैं सबके लिए दुआ गो हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त इनकी कब्रों को नबी पाक के नूर से और कुरान पाक के नूर से नवर मेरे मौला आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मुजाहिदीन इस्लाम की खैर फरमा। मेरे मौला जितने दोस्त अहबाब ने दुआ के लिए कहा था खुसूसन जनाब जमील साहब हमारे मलिक बेकरी वाले उनकी तरफ से ये खुसूसी ख्वाहिश थी मेरे मौला उनको भी जन्नत में आला रफ़ा मकाम दिए। उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था आज तक तामल फरमा रहे हैं, इनके तामल को अपनी बारगाह में पूरा मंजूर। मेरे मौला जितने भी दोस्त अदारे के साथ मस्जिद के साथ तामल फरमाते उनके मालिक में बरकतें अता फरमा, बैरून मुल्क से और अंदरून मुल्क से और पर्दे के साथ तामल फरमाने वाले जितने अहबाब हैं उनका उन पर अपना शुक्र करो। मेरे मौला इस अदारे को पाया तकबीर तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला इसके शाखों को भी जहाँ जब भी हमारा काम शुरू है उनको पाया तकबीर तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। जितने दोस्त अहबाब तामल फरमाते हैं माल इसमें बरकतें अता फरमा और खुसूसन तारीख़ लब्बैक या रसूलुल्लाह को कम यार कमरान फरमा। मेरे मौला इसके लिए तामल करने की तौफीक अता फरमा और जितने लोग इसमें शामिल हैं मेरे मौला उनको नबी रहमत का गुलाम बनकर दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, मसाजिद और मदारस को आबाद करने की तौफीक अता फरमा, अपने बच्चों को दीन की तरफ लाने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला अपने बच्चों को दीन की तरफ लाने की तौफीक अता फरमा, कुरान पाक का हाफिज़ बनने की तौफीक अता फरमा, इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त के लंगर में जितने दोस्तों ने तामल फरमाया है इनके बाद इसमें बरकतें अता फरमा। मेरे मौला अपना फजल और करम फरमा के इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां नसीब फरमा। फिर इन जितने दोस्त नमाज मगरिब से लेकर इस वक्त यहाँ पर तशरीफ फरमाए मेरे मौला तू उनके दिलों के रातों को जानता है, जो बेलाद है उनको औलाद नगीना अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो रिज़्क़ की तलाश में है उनको रिज़्क़ इलाज अता फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। मेरे दोस्त जितने बैरून मुल्क हैं हमारी आवाज़ सुनते हैं मेरे मौला और उस पर लब्बैक कहते हैं उन पर अपना खुशी करम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबी मुहम्मद महबूबी मुहम्मद करीमी मुहम्मद मुबारक सल्लम अलैहि लिखब्बतुम फी आखिर रबाल खातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व बना व फातिमा इलाही बहक़ बनी फातिमा बरकौल मा कुनम खातिमा अगर तफ्तर रत्नी वल कबूल मनद दामान आले रसूल इलाही बहक़ मोहम्मद रसूल पहले मोहम्मद व रसूल हमारे खतीब का खुदे तदुरुस्ती अता आमीन। मेरे मौला अदारे के जितने उस्ताद इकराम हैं इन पर खुशी करम फरमा, मेरे मौला इन पर खुशी करम फरमा, इन पर खुशी करम फरमा, इनको सेहत और तंदुरुस्तियां अता फरमा। अल्लाह काफी कदर तो काफी शक्र काफी लकुल काफी कफाफिल काफी नेमत काफी लाइकान या हज़रत शाह सुल्तान सैयद कादर जीलानी शरीला अगस्नी फीस बिल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा मोहम्मद शफीक साहब ढेर सारे हैं